the last video so see here dear students, in the last video we have completed our chapter. We studied the derivation for terminal velocity. Okay, so once again I will revise that in a short. So see here what we have considered. We have considered one metallic sphere, and this metallic sphere it is freely falling in a viscous medium. Now on this metallic sphere, what happened? The one force is acting on it in a downward direction. That force is because of its weight. Fg is equal to m into g. And second force, there are three forces acting on this metallic sphere. As we know that one force it is in upward direction, that is the viscous force. Okay, and one more force it is upward direction, that is upthrust force. Okay, and the net force acting on this metallic sphere it is equal to F is equal to Fg minus Fv plus Fu. Okay, then as we know that when that metallic sphere the acquired terminal velocity, then at that time what happened? The net force acting on that metallic sphere is the 0, 1. So therefore we get Fg is equal to Fv plus Fu, means net downward force is equal to net upward force. Okay, so that is about the net downward force is equal to net upward force. So we know the value of this force m into g, and by the Stokes law we know that viscous force is equal to 6 pi eta into r into v, and upthrust force it is because of the mass m into g. Okay, so we know that mass is equal to, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. इस स्फीयर का मास m है, उसकी डेंसिटी रो है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सिग्मा है. ओके, सो फ्रॉम दिस वी गेट m इज इक्वल टू rho into volume, and for liquid this is for metallic sphere, and for liquid sigma is equal to mass upon volume, or for liquid m is equal to sigma into v. We just put that value. So mg पता है आपको, तो mass upon volume यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? mass upon volume की जगह ये this is the mass of that metallic sphere, so it is here rho into v into g. So यहाँ पे 6 pi eta into r into v प्लस यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? सिग्मा, m की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा into v into g. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है, तो यहाँ पे v की वॉल्यूम की वैल्यू डालेंगे 4/3 pi r cube है रेडियस ऑफ स्फीयर into rho into g. तो सिमिलरली हमने 6 pi eta into r into v, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे सिग्मा को वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू डालेंगे 4/3 pi r cube. ओके, और बचा क्या? सिग्मा इंटू जी. ये 4/3 pi r cube ये इधर लेंगे, तो इसमें से हमने 4/3 pi r cube कॉमन निकाला था, तो बचा क्या ब्रैकेट में? रो इंटू सिग्मा इक्वल टू 6 pi eta into r into v. तो this pi gets cancelled, 1r gets cancelled, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सपोज हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या बचा? 4/3. So here I will write here. So here आप बचा क्या यहाँ पे? 4/3 pi r cube हमने इधर ले लिया. 4/3 pi r cube ये, इसको इधर लाया तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें से हमने 4/3 pi r cube कॉमन निकाला. 4/3 pi r cube, तो ब्रैकेट में क्या बचता है? रो माइनस सिग्मा. रो इज द डेंसिटी ऑफ मेटालिक स्फीयर एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड. ओके, इक्वल टू क्या बचा? 6 pi eta into r into v. ये पाई 1 pi गेट्स कैंसल, 1r यहाँ का एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा? 4/3 pi इज कैंसल, तो r स्क्वायर सिग्मा इंटू अब रो माइनस सिग्मा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 6 pi eta into v. हमें v की वैल्यू निकालनी है. वी आर फाइंडिंग द डेरिवेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, सो वी विल गेट, अब इसको 2 से डिवाइड किया 2 3. ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ट्वाइस, यहाँ पे g रह गया, यहाँ पर ट्वाइस r स्क्वायर g into रो माइनस सिग्मा. ओके, डिवाइडेड बाय ये 3 तो एज इट इज रहेगा, ये 3 इधर आया तो इधर मल्टीप्लिकेशन है,
इंटू 3 इंटू ईटा हो जाएगा। तो हमें क्या मिला v का डेरिवेशन 2/9 रो माइनस सिग्मा r स्क्वायर g डिवाइडेड बाय ईटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। और इसमें से हमें ईटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ईटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2/9 रो माइनस सिग्मा r square g divided by v. V is the terminal velocity. Okay. So in this way we have completed that portion. Now the remaining portion that is omitted from your syllabus, like the equation of continuity, Bernoulli's theorem, that one is also very easy. But this portion is omitted for this academic year. So that's why here we have completed our first lesson. Now depending on this lesson, some numericals may be asked. So the pressure portion is also cancelled. So that's why we will not take the numericals on that. So whatever be the importance topic that we will cover here. Okay. So see here numericals. So today we are going to see the numericals. So before that I will write some important formulas here. So as we know that first we see in surface tension important formulae. तो पहले हमने देखा था सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या थी। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके। देन हमने देखा, देन वी स्टडी द, बाद में हमने कौन सा पोर्शन देखा था सरफेस टेंशन के बाद मॉलिक्यूलर थ्योरी देखी। ओके। मॉलिक्यूलर थ्योरी के बाद हमें फार्मूला वाला देखा हमने, बाद में सरफेस टेंशन का फार्मूला देखा T = h rho r g डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। बाद में हमने देखा था कि दो कैपिलरी ट्यूब एक ही लिक्विड में जिसका सरफेस टेंशन सेम है, तो उसके लिए फार्मूला देखा था R1H1 = R2H2। R1 is the radius of first capillary tube, H1 is the height of fall of liquid in first capillary tube, and R2 is the radius of second capillary tube, and H2 is the height or fall of liquid in the second capillary tube. यहाँ पे T is surface tension, H means it may be a rise or fall of liquid, fall of height in a capillary tube, rho means density of liquid, R is the radius of that capillary tube, G is the acceleration due to gravity, theta is the angle of contact. Okay. Then हमने देखा बाद में स्टोक्स लॉ देखा, बाद में हमने न्यूटन्स लॉ देखा। उसके पहले न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ मींस एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो ईटा कांस्टेंट आता है यहाँ पे dv/dx। ओके। देन हमने देखा यहाँ पे स्टोक्स लॉ का देखा, फिर विस्कस फोर्स F = 6 pi eta into r into v। स्टोक्स लॉ का फार्मूला, क्योंकि suppose any metallic sphere which is freely falling inside the liquid, then that liquid will experience this much force by the Stokes law, and this is the by the Newton's law of viscosity. Okay. Then अभी हमने देखा टर्मिनल वेलोसिटी का v = 2/9 r square g या फिर into rho minus sigma divided by, this is not a 6, this is a sigma divided by theta. Okay. So r square, r is the radius of that tube, Stokes tube, g is the acceleration due to gravity, rho is the density of that metallic sphere, and sigma is the density of that liquid, and eta is the coefficient of viscosity of given liquid. अब इसको भी हम ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं कि eta इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 2/9 r square g rho minus sigma divided by v. Okay, इसमें से हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी फार्मूला मिलता है। Now these are the very important formulas, and based on this formula numerical will be asked in your exam. So now today in this period I will cover your numericals. I will try to cover maximum numericals. So see here, first we see the first numerical. So see here, calculate the viscous force, calculate the viscous force acting on a raindrop calculate the viscous force acting on a raindrop
of diameter 1 mm, of diameter 1 mm, of diameter 1 mm, falling with uniform velocity v, falling with uniform velocity, falling with uniform velocity, falling with uniform velocity 2 meter per second, falling with uniform velocity 2 meter per second through air, through air, through air, through air. The coefficient of viscosity of air is, the coefficient of viscosity of air is, the coefficient of viscosity of air is, coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 raised to power minus 1.8 into 10 raised to power minus 5 Newton second per meter square. Okay, so see here, while solving the problem, it is very important for us. First, you should read the problem carefully. जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, so while solving the numerical, you just go through that numerical, whatever the given quantities are given there. So you have to note down this quantity. Now see here what they are saying. They are saying calculate the viscous force acting on a raindrop. There is one raindrop, and that raindrop is freely falling. Raindrop of a diameter. That raindrop has a diameter of 1 mm. And it is freely falling with uniform velocity 2 meter per second. Okay, means through the air. Air में से there is one raindrop is here having a diameter is 1 mm, and this raindrop is freely falling in the air with a uniform velocity 2 meter per second. And the coefficient of viscosity of air is also given. So first what we do? We will write whatever be the quantity given. जो भी quantity हमें given में दी है, पहले वो लिखेंगे. क्या बोला है? रेन ड्रॉप का डायमीटर क्या है? D is equal to 1 mm. Okay. Then what is given? Then velocity. Velocity कितना है? रेन ड्रॉप का 2 मीटर पर सेकेंड. Okay. बाद में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना दिया है? 1.8 into 10 raised to power minus 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. और हमें निकालना क्या है? विस्कस फोर्स निकालना है. विस्कस फोर्स या फी निकालना है. तो अब देखिए, आपको कभी भी while solving the problem, it is very important that you must, so see here, this quantity diameter it is given in a millimeter, then velocity is given in a meter per second, and this is also the SI unit of coefficient of viscosity. जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, पहले जो भी गिवन क्वांटिटीज दी है उस प्रॉब्लम में, तो पहले चेक कर लेगा ऑल द क्वांटिटीज आर इन द सेम सिस्टम और नॉट. मतलब सभी क्वांटिटी के यूनिट्स एक ही सिस्टम में है क्या? अब ये ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है, और ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं. तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेडियस. इसमें से आपको पहले रेडियस निकालना पड़ेगा. रेडियस कितनी आएगी? फ्रॉम दिस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर 1 mm है. ओके, इट इज द डायमीटर इज गिवन, डायमीटर इज 1 mm, तो रेडियस क्या आएगा? D/2, मतलब 0.5 mm. अगर इसको मीटर में किया हमने तो 0.5 इंटू 10 raised to power minus 3 मीटर. आपको पता है कि 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. ओके, तो इसके लिए इसको हमने 10 raised to power minus 3 से मल्टीप्लाई किया. ओके, नाउ ऑल द यूनिट्स आर इन द सेम सिस्टम. नाउ वी हैव द फार्मूला. हमें क्या निकालना है? विस्कस फोर्स. तो आपको स्टोक्स लॉ का फार्मूला पता है, क्योंकि हमें R की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, ईटा की पता है. सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करना है and you will get the answer. Okay, so see here, by Stokes law we have Fv is equal to viscous force is equal to 6 pi eta R into V. तो 6 pi को मैं एज इट इज लिखता हूँ इंटू ईटा की वैल्यू कितनी है? 1.8 इंटू 10 raised to power minus 5. R की वैल्यू 0.5 इंटू 10 raised to power minus 3, और V की वैल्यू कितनी है मेरी? 2 है. ओके, तो हमें विस्कस फोर्स निकालना है. तो देखिए आप, तो 6 पाई तो एज इट इज दिख रहा हो, अभी पुश कर रहे हैं
1.8 1.8 अब 10 पावर हम सेपरेट लिखेंगे पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 कितना आएगा 5 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो कितना आता 10 आता मगर ये 0.5 है तो 1.0 आएगा एक डेसिमल तो यहाँ पे कितना आएगा इनटू 1 तो ये पावर क्या था अलग लिखता हूँ 10⁵ इनटू 10⁻³ ओके इट इज वेरी इजी दैट व्हाइल सॉल्विंग आप प्रॉब्लम सॉल्व करते पैनिक नहीं होने का आप स्टेप लंबे हुए तो चलते हैं मगर योर आंसर मस्ट बी करेक्ट ओके आप देखिए यहाँ पे 6 आप देखो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अभी कन्वर्ट नहीं करता 1.8 इनटू 1 तो ये आ जाएगा 10⁵ दोनों का बेस सेम है तो पावर की क्या होती है एडिशन तो 10⁻ कितना हो जाएगा -8 -5 प्लस -3 दैट इज -8 तो 18 6 कितना आता है आपको पता है 18 6 कितना आता है 48 ओके तो कितना आ जाएगा 108 तो 108 का डेसिमल कितने बार 10.8 तो 10.8 इनटू पाई की वैल्यू कितनी रहती 3.14 इनटू 10⁻⁻8 तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए you will get the answer 3.393 you will get the answer 33.93 into 10⁻⁻8 और यूनिट क्या रहेगा फोर्स का न्यूटन so this will be the value of our viscous force so see here 10.8 है multiply by 3 तो 33.93 into 10⁻⁻8 okay this is the answer of your numericals so what is given here diameter is given velocity is given eta is given so it is very easy for us to find the viscous force we have the formula by Stokes law so 6 pi eta into r into v इसके से हम इजीली निकालते हैं क्योंकि ये ड्रॉप फ्रीली एयर में फॉल हो रहा है okay so we get this value okay so this is about the numerical now the next numericals we are going to study अब दूसरा न्यूमेरिकल देखिए तो न्यूमेरिकल दे आर वेरी इजी बट डोंट बी पैनिक विद दैट इफ यू नो द फार्मूला यू कैन इजीली सॉल्व द numericals okay so the next numericals a horizontal force of 1 newton a horizontal force of 1 newton a horizontal force of 1 newton is required to move a metal plate is required to move a metal plate is required to move a metal plate of area 10⁻² meter square of area 10⁻² meter square with a velocity of 2 into 10⁻⁻² meter per second 2 meter per second 2 into 10⁻⁻² meter per second okay when it rests on oil when it rests on a layer of oil when it rests on a layer of oil 1.5 into 10⁻³ 1.5 into 10⁻³ meter thick okay 1.5 into 10⁻³
मीटर थिक. Find the coefficient of viscosity. Find the coefficient of viscosity. Find the coefficient of viscosity. Okay. So see here what is given. A horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10⁻⁻² meter square with a velocity of 2 into 10⁻⁻² meter per second when it rests on a layer of oil. मतलब एक ऑयल की लेयर है ऐसी जिसकी थिकनेस कितनी है, having the thickness is equal to कितना है थिकनेस 1.5 into 10⁻⁻³ meter. Okay, and on that thickness of layer there is a metal plate is there, and that metal plate have an area of 10⁻⁻² meter square. Okay, and that metal plate is moved by applying a force of 1 Newton on that metal plate. It moves with a velocity of 2 into 10⁻⁻² meter per second. मतलब ये हमारी ऐसी एक ऑयल की लेयर है, उस ऑयल की लेयर के ऊपर एक मेटल प्लेट है जिसका एरिया कितना है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है. ओके, अब उस ऑयल की लेयर को हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ये हमारी ऑयल की लेयर है सपोज. अब ये ऑयल की लेयर है, इसका थिकनेस कितना है, the thickness of that oil layer is 1.5 into 10⁻⁻³ है मीटर. ओके, अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, एक मेटल प्लेट रखी है जिसका एरिया है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर इतना. अब उस मेटल प्लेट को मैं पुश कर रहा हूँ विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. ओके, एंड ड्यू टू दैट फोर्स दैट द प्लेट इज मूव विद द वेलोसिटी ऑफ कितने वेलोसिटी से 2 into 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो मूव हो रही है. So I have to write here first given whatever be the quantity given, so that I am going to write here. So solution of this problem is here given. तो given में क्या दिया है, पहले मुझे फोर्स दिया है. How much is the force? 1 न्यूटन. ओके, विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं आप. Then उसका एरिया कितना दिया है, एरिया ऑफ प्लेट इज 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर दिया है. और उसकी वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी 2 into 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड दी है वेलोसिटी. और उस ऑयल की लेयर, ऑयल का लेयर का थिकनेस, मतलब हमने देखा था, देखिए ये ऑयल है, उसकी लेयर है, उसके ऊपर ये मेटल प्लेट है हमारा, मतलब उसका थिकनेस, मतलब क्या दिया है हमने, हमको dx दिया है. और ये इसको हम बोल सकते हैं dv बोल सकते हैं. तो dx इज इक्वल टू कितना है 1.5 into 10⁻⁻³ मीटर. ओके, और हमें निकालना क्या है, ईटा निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो हमारे पास फार्मूला कौन सा रहेगा, फिर अभी देखिए. अब देखिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखिए हमें एरिया दिया है, हमें डीवी दिया है. ओके, और हमें उसका उस लेयर का थिकनेस भी दिया है. हमने जब कंसीडर किया था, जब हमने देखा था विस्कोसिटी ऐसे लेयर से बना है, तो इस दोनों में इसका थिकनेस कितना है, dx है. कितना है, dx इक्वल टू कितना है 1.5 into 10⁻⁻³ है. और इसके ऊपर एक मेटल प्लेट है जिसका एरिया कितना है, एरिया है 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. ओके, तो ये कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, dv. इसकी वेलोसिटी कितनी है 2 into 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड. ओके, तो ईटा कौन सा फार्मूला यूज करोगे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, न्यूटन लॉ का फार्मूला. तो F इज इक्वल टू, F की तो वैल्यू पता है, तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, F इक्वल टू ईटा a into dv by dx. ओके, तो हमें अब ईटा निकालना है. तो ईटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, F अपॉन a into dv by dx मिलेगा. F अपॉन a into dv by dx. अभी सब चीजें आपके सामने ही है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज. वैल्यू पुट करना है और आप इजीली आंसर निकाल सकते हो. यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन आल्सो. तो ईटा इज इक्वल टू F की वैल्यू कितना मिला है, F अपॉन a into dv by dx. तो ईटा इक्वल टू F अपॉन a into dv by dx मिला है हमें. ओके, सो सी हियर, तो F की वैल्यू कितनी है 1 न्यूटन. एरिया का वैल्यू कितना है हमारे 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. और dv का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv, 2 into 10⁻⁻² मल्टीप्लाई बाय 2 into 10⁻⁻². और ये dx कितना है, दैट dx थिकनेस कितना दिया है 1.5. अब ये 1.5 यहाँ पे लिखता है 1.5 into 10⁻⁻3. अब ये 1.5 इसके डिनोमिनेटर में, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा.
तो 1.5 into 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 2 10 to the power minus 4 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 4 क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर की क्या होती है फिर एडिशन होती है। तो हमें क्या मिलेगा 1.5 डिवाइडेड बाय 2 ये 10 to the power minus 4 ऊपर लेके जाता हूँ मैं 10 to the power यहाँ पे कितना आ जाएगा minus 3 ये ऊपर लेके गया तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 10 to the power दोनों का बेस सेम है तो एडिशन होगी 4 minus 3 क्या हो जाएगा 10 बचेगा सिर्फ 1.5 डिवाइडेड बाय 2 into 10 to the power 1 है मतलब 10 to the power पावर कुछ नहीं है मतलब उसका पावर क्या है 1 है क्योंकि 4 में से 3 गए तो 1 बचा। तो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 7.5 सी है आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बनेगा 1.5 into 10 है डिवाइडेड बाय 2 है तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर क्या आ जाएगा 7.5 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू नॉट राइट यूनिट यूर हाफ और 1 मार्क्स में भी डिडक्टेड। तो इसका आंसर क्या आएगा 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके मतलब देखिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो यहाँ पे फोर्स दिया है, एरिया दिया है, चेंज इन वेलोसिटी दी है, उसका थिकनेस दिया है लेयर का, सिंपली हमें न्यूटन का विस्कोसिटी में ये वैल्यू पुट करना था और हमें आंसर मिल गया। ओके सो दिस इज अबाउट द सेकंड न्यूमेरिकल्स। नाउ द नेक्स्ट वी विल सी अगेन वन न्यूमेरिकल्स। सो किसी भी हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का भी फार्मूला देखा था इसमें। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के फार्मूले के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल्स आ सकता है। एक VC इक्वल टू क्या देखा था हमने VC इक्वल टू ईटा इंटू आर डिवाइडेड बाय रो इंटू डी। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ओके तो देखिए अब नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो किसी भी ईच एंड एवरी फार्मूला इज इंपॉर्टेंट एंड इफ यू नो द फार्मूला यू कैन इजीली एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के बारे में अपडेट होने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू स्टडी द होल चैप्टर प्रॉपर्ली then you know the numericals easily, and if you know the formula you can easily solve the numericals one.